The Tripura Motha has announced a strike in ADC area on the coming 30th of September for 12 hours on the demands of constitutional solution. Tripura Motha former chairman Maharaja Pradit Kishore Devarma gave this information through a press meet conducted at the Ujjayanta Palace on Saturday. Besides demanding for greater Tripura land, now the Tripura Motha is about to fall into difficulties once again. An allegation has made regarding this issue from the beginning by BJP IPFTM San party members, which is why the TSP got separated with Tripura Motha. Based on this issue, the members of TSP has raised an allegation questioning regarding their ideology, for they have been spoken about the demand of greater Tripura land, a constitutional solution, or the interlocutor, which is how the members of the party are in a state of confusion, seeking what is the actual ideology or demand of Tripura Motha. However, no matter whatever the ideology is, what most important is that the Maharaja Pradit has raised the voice of unity among the Triprasa people at the right time and tried the people to rise up and fight for the rights of the Triprasa people. As such, the Tripura Motha has announced a strike in ADC area on the coming 30th of September for 12 hours on the demands of constitutional solution. This strike will start from morning 6 am to evening 6 pm. Tripura Motha former chairman Maharaja Pradit Kishore Devarma gave this information through a press meet conducted at the Ujjayanta Palace on Saturday. Thank you, friends. Today we have kept a press conference here just to inform all the people in media and through you the entire people of Tripura that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day bandh in the ADC areas to press for our demand for a constitutional solution with the Government of India. The bandh will be from 6 am till 6 pm, but this is a beginning of telling the Government of India that we want an early solution to our problems. And on the 30th of सितंबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 तारीख सितंबर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज़ में त्रिप्रासा बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज़ को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंसेस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली को हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सोल्यूशन का आप हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंस है लेकिन पेशेंस इज रनिंग थिन एंड इन अ वे हम लोग एक सिंबॉलिक बंद कर रहे हैं, एक आवाज़ में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होना चाहिए। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। त्रिपुरा मोथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना त्रिप्रासा है, जिसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ है और हमें संवैधानिक सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, थानसा दिखाइए और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज भेज सकते हैं। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। ADC area, because we know that outside ADC area, Tripura Motha has limited influence, and why should we go and shut down shops of people who are not affected in our movement? I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the Government of India from the Triprasas. If other people want to support our bandh, they are most welcome, but we will not force them. But from the Triprasa community side, we will definitely send a message to the Government of India that we want justice for our survival and existence
of our people. प्रेशर रखना पड़ता है मैडम, प्रेशर रखना पड़ता है। प्रेशर नहीं रखेंगे तो कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट है, उनके पास बहुत पूरा देश को चलाना है। तो अगर हम लोग अपना प्रेशर नहीं रखेंगे तो हमें कौन याद करेगा? तो हमको प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, हमने मिला है, अच्छे से बात भी हुआ है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मनोरंजन के लिए तो आया नहीं हूँ। उनको अपना लोगों का बात भी तो बताना है। तो अगर उनके माइंड फ्रेम में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो हमको प्रेशर रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसा बोलूँ? लेकिन उनको प्रेशर में मतलब उनके नॉलेज में रखना पड़ेगा कि यहाँ में एक जेन्युइन सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट पॉलिटिक्स से बड़ा है। ये सेंटिमेंट इमोशनल है, ये सेंटिमेंट हमारे अधिकार का है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल माइलेज करो, हमको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए और वो आपने कार्बी आंगलों को दिया है, बोडो को दिया है, मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, आप दिमासा को दे रहे हैं, तो हमें भी दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जिस टाइम आपका सब बैठक हुआ, सेवरल टाइम बैठक हुआ, तो वो इनका मन में क्या है? वो सॉल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो चाहता है, मुझे तो लगता है वो चाहता पॉजिटिव, वरना मुझसे बार बार क्यों मिले? ऐसी तो नहीं मिलेगा स्टेट का होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर मुझसे बार बार मिल रहा है क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ में भी तो लोकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज़ में दिल्ली में बात करेंगे तो फिर से क्लासिक केस होगा कि हम लोग डिवाइडेड है और कोई हमें और एल्स रूल करेगा। इसके लिए एक आवाज़ में एक आवाज़ उठाने से अच्छा होता है। जब एडीसी भी क्रिएट हुआ था तो चंदन पत्रिका का अपना जो मालिक है, ही स्टिल अलाइव, ही हेल्प श्यामाचरण त्रिपुरा। तो इट्स नॉट ओनली दैट तिपरासास हैव टू ओनली हेल्प तिपरासास, आई होप दैट एवरीबडी एल्स आल्सो कम्स आउट। जब गांव में इतना गरीबी है, वो है, पानी का समस्या है, नौकरी का समस्या, आप खुद देखते हैं अपने आँख से, तो आपको भी हमारे लिए बोलना चाहिए। अमित शाह जी के साथ आप किस बारे में बात किया? मैंने कह दिया कि मैंने किस बात में बात किया। एवरीथिंग इज ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर त्रिपुरा लैंड। और क्या बात करूँ उसके लिए? টিএসপি কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিল যে মথা থেকে টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু টিএসপি তাদের বক্তব্য টিএসপির এফিলিয়েশনে এডিসিতে নির্বাচনে মথা জয়ী হয়েছে, তো টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর এডিসির সংকট দেখা দেবে বা মানে এডিসির যারা সদস্য, যারা জনপ্রতিনিধি, তাদেরকে টিএসপিতে আসার জন্য বলা হয়েছে। তো এডিসিতে কি কোনো সংকট আছে মনে করেন? देखिए, এটা টিএসপির বক্তব্য। টিএসপি का कौन है? ये रजिस्टर्ड না, ওরা আমি কালকা নতুন পার্টি আরম্ভ করতে পারে, আমি বলবো আমি কংগ্রেস ও অরিজিনাল, আর আমি বলবো কি আমাদের নেতৃত্বে এ হয়েছিল আমার প্রেসিডেন্ট, এই আমাদের অ্যাপয়েंटमेंट, এমন হয় না। आई हैव गॉट फुल लीगल डॉक्यूमेंट्स। सो देखिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी है। एंड ये लोग बहुत सीनियर लोग हैं, एजड लोग हैं, तो सिस्टम अब चेंज हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंज हो गया है। हम लोग ने जो भी किया है थ्रू द रूल्स किया है। और अगर आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी को अगर नया पार्टी खोलना, आप खोलिए, टीएसपी खोलिए, टीपीएफ खोलिए, टीकेएफ खोलिए, टीटीएकेपी खोलिए, जो भी खोलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिमांड उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है और हमने अपने डिमांड में कॉम्प्रोमाइज़ डाइल्यूशन नहीं किया। तो हम गवर्नमेंट में भी नहीं बैठे हैं अभी तक। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव समथिंग टू आवर कम्युनिटी, टू आवर पीपल। सो एनी वन कैन से वॉट एवर, बट इन द एंड दे हैव टू जस्टिफाई क्यों। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव some of these people very much importance. They are not important.
If they were important, they could have fought for the elections. They would have got the tickets also. But they have not. Don't give them very much importance. I love Sridham. I've known him since Congress days. No problem. He's got every right to form a party. पार्टी खोलना मुश्किल नहीं है, न्यूज़पेपर खोलना भी मुश्किल नहीं है, टीवी चैनल्स खोलने पे मुश्किल नहीं है, चलाना और मेंटेन करना प्रॉब्लम है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट इंडिया যদি আপনাদের ত্রিপুরাল্যান্ড এই দাবি ছাড়া যদি অল কাইন্ড অফ যদি ডেভেলপমেন্ট যদি আপনাদের করে দেয় তাহলে কি আপনি এই দাবি থেকে সরে যাবেন? वो तो let the government of India give us a proposal. I'll show it in front of you all. Make it public. ऑफिशियली अगर कोई प्रपोजल दे दे तो हम पब्लिकली दिखा देंगे, उसके बाद सब बैठ के बात करेंगे, लेकिन पहले ऑफिशियली कागज़ तो आ जाए जब। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल्स इंटरेस्ट, इज़ ओनली दैट अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लेके थोड़ा डिले हुआ है। बट जब तक कागज़ हाथ में नहीं आए मैं कैसे बोलूँ कि ये ठीक है वो ठीक है। मुझे अपने लोगों However, the Tripura Motha former chairman Maharaja Pradeep did not reply to the questions when asked by the reporters about why not the demand is Greater Tripuraland rather than a constitutional solution, and why not the strike will hold in the entire state and only in ADC areas. आप हाँ, मैंने कहा ना कि पीपल वांट टू स्पेकुलेट, स्टॉक मार्केट तो है नहीं। हाँ, हम लोग हाँ আমি এক সময় বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল, আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিল, ये हमारा स्टांस ছিল, पार्टी का स्टांस होता है। एक समय আমি ना पता सुने लो, जब आप कोई पार्टी में होता है तो आपका पार्टी का लाइन लेना पड़ता है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अच्छा, शांति से हम बोल रहे हैं, हमने तो नहीं बोला है कि जाके किसी की दुकान रोक दो, हमने तो अपील किया है कि प्लीज़ सपोर्ट इन द बंद। आई वाज फॉर सपोर्ट। हमने तो नहीं बोला है कि हम बंद करेंगे, हमने बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और बंद कीजिए, हमने ये बोला है। इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुआ था अलायंस के लिए, मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं होगा नो अलायंस। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें सिंसियर अलायंस से पहले हमें अपने जनजाति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो देने के बाद व्हाई नॉट, बट उसके पहले रीजन बाय इलेक्शन में तो अमित शाह मेट मी बट नॉट फॉर द इलेक्शन, वी डिडंट फाइट द इलेक्शन। हमने तो इलेक्शन फाइट ही नहीं किया धनपुर में और बक्सर नगर में। नहीं ठीक है, बक्सर नगर धनपुर में तो हमने इलेक्शन फाइट ही नहीं किया। आज तो कोई हमको अक्यूज नहीं कर सकता ना कि हम वोट कटवा पार्टी है। फ्री एंड फेयर डायरेक्ट फाइट था बिटवीन सीपीएम सपोर्टेड बाय कांग्रेस, इंडिया अलायंस एंड बीजेपी। रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया। रिगिंग हुआ या ना हुआ, ठीक है, एक बात है कि लार्जेस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया, इंडिया अलायंस का बिगर पार्टनर कांग्रेस पार्टी, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया, बिना बोल के अनाउंस कर दिया कैंडिडेट। आप लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन, और आप बिना पूछ के आप कैंडिडेट अनाउंस कर देते हो और उसके बाद बोलते हो बाय रिगिंग होता है जब आप डरते हो। एडीसी इलेक्शन में हम लोग ऑपोजिशन में नहीं थे, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था, हमने फाइट नहीं किया। कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था कितना रिगिंग हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 167 बूथ में पोलिंग कराया, हम लोग 1% से 27% चले गए, सीपीएम 55% से या 60% से 19% आ गया। क्यों? आपके ऊपर जब अटैक होता है आप डर के भाग जाते हो, आप अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तृणमूल कांग्रेस भी आप बोलिए, जो भी बोलिए, लास्ट ईयर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ दे फॉट, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फॉट, मार खाया, लोग फाइट किया। ये लोग तो जब पावर में नहीं है तो एकदम दूसरा गली से निकल जाते हैं। अटैक क्या सिर्फ सीपीएम को होता है, हम लोग को नहीं हुआ कैसे अटैक? इतने साल सीपीएम पावर में था, रिगिंग का जो ब्लू किताब है, ब्लैक बुक है रिगिंग का, कैसे रिगिंग करना चाहिए, वो तो सीपीएम पार्टी ने लिखा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, त्रिपुरा हो, इट्स अ डिजाइन बाय सीपीएम।
I feel bad for CPM, but they should have consulted the Congress party. They should have consulted us before announcing. They did not consult us. They just went and announced it. So we are not going to just follow CPM party just because they think that we are not in the government, that हम लोग automatically जाएंगे. उनको थोड़ा सा कांग्रेस से पूछते, हमसे पूछते. असेंबली इलेक्शन के टाइम कांग्रेस से बिना बात करके 47 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए. सो थोड़ा सा पावर में नहीं है आप, थोड़ा सा जमीन में आकर सबके साथ बात कीजिए. हाँ क्या? No, no, band is not a solution, but is no, it's okay. Band is not a solution. What question you asking? But band is a step to bring attention so that we can bring It is a solution. movement. It is movement. Right? It's a part of movement. Sometimes when you say to the leader, I am against you, you are not necessarily against, but you are telling the leader to pay attention. ये क्यों बोल रहा है? We are trying to bring attention to the government of India, because solution can never be through guns. But the Nagas are carrying guns. Government of India is talking. For how many years? MNF was using guns. Government was talking. Vijay Rankol had TNV. Government of Rajiv Gandhi spoke. हम लोग तो बंदूक नहीं उठा रहे, हम तो पीसफुली कर रहे हैं. हड़ताल इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. आपने मुझे बॉयकॉट किया, इज दैट अ सोल्यूशन? नो. Many people boycotted me, but is that a solution? No. But it is to bring attention to why this is happening. But that's it. I support the women reservation bill. I think it should be implemented in 2029. Women reservation bill absolutely should be implemented. I support India's position on Canada. Canada cannot keep Khalistani terrorists and then expect India to do chocolate diplomacy. I support India's foreign policy. When it comes to foreign policy, I support women's reservation bill within the country, and I absolutely support the India's reaction to Canada. I think it should be implemented in 2029. जितना आप women को पीछे रखोगे, उतना मेकअप करना मुश्किल होगा. 24 I don't think it's possible because आप लोग ने सेंसस ही नहीं किया. अब मैं बोलूँगा, देखिए अभी मैं बोलूँगा जस्ट टू मनोरंजन किसी को करने के लिए नहीं होगा. पहले सेंसस आ जाए. और डिलिमिटेशन में एक चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को 150 सीट एक्स्ट्रा मिले, साउथ इंडिया को 20 सीट एक्स्ट्रा मिले और नॉर्थ ईस्ट को 2 सीट एक्स्ट्रा मिले. तब तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही डिसाइड कर लेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है. हम लोगों को कोई सुनेगा नहीं. तो डिलिमिटेशन ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली वेयर रीजनल geographical representation has to happen. Balance. There is a demand also coming. 2011 there was a cluster. The reports have not been till yet published. 98% it is correct, and the changes that was done, which is pending in the Supreme Court. Right? What is your view? Let the Supreme Court decide. हम बोलेंगे तो सुप्रीम बोलेगा क्यों आपने डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट. 98% the changes have been made, which were demanded from the states, but ultimately the cluster was not. 2011 it was Congress government, no? So they should have taken a decision. 125th amendment that we are asking for was under Congress government. They didn't decide. Now this government is there. Point is, both sides have their role. 10 years Congress was in power. Why didn't they give us some solution? So now these people are there for 10 years. We want some solution. If they give it, great. If they don't, then दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग. ना Madam, you're very sweet question. Sweet like you. I support only those people who support my Tiprasa people. ठीक है? My support and my loyalty is with my Tiprasa people. You support my Tiprasa people, I'll support you. You don't support my Tiprasa people, then I'm sorry. That's. सर आपके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया गया है कि तेईस के इलेक्शन से पहले आपने जितना ग्रेटर डिजाइन को ब्रांड किया था या फिर क्लब को आपने यूज किया था सोशल मीडिया में, आपके हर प्रचार में, ऐसे
ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोल दिया, आयुक लक्थों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आंथुई अंखा त्रिपुरा हनी बागोई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आयुक लक्थों बोल दिया मैंने। अब रोज मैं पैलेस के ऊपर उठ के क्यों बोलूं? हाँ, बोल दिया मैंने, अभी बोल दिया। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे भी समझना है कि मेरा लोगों को, मेरा तिपरासा लोगों को, उनका भी कष्ट है। मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा फाइट नहीं, ये इनका फाइट है। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना तिपरासा के बीच में। I just want to give something to my people, that is it. And it is not about me, it is about Mewar, Rajeshwar, Jagdish, everybody wants to give. Even you, I'm sure you want to help us. On the other hand, Maharaja has requested to all the Tiprasa people to support him on 30th of September to maintain the strike highly. ADC's chairman Jagadish Devarma, Tripura Motha state member Mebar Kumar Jamatia, Rajeshwar Debarma, EM Kamal Kaloi and others were present on this day at the press meet. Reported by Amit and Pranav from Agartala, Chini Khorang.